आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. So, what is physical and chemical change? We see different type of changes all around us, like growth of the plants, growth of a baby into adult person, ripening of fruit, cooking of food. So, which type of change is a physical change or which type of a change is a chemical change? We know that all materials are made up of matter, and every matter is made up of very small particles, and these particles are regarded as atoms. And we will study in the next lessons that every atom is made up of electron, proton and neutron. These are the three fundamental particles of every atom, and every substance has a definite composition, has a definite structure. So if there is a change in a substance and there is no change in the structure and properties of the substance, then we can say that change is a physical change. It means we can define this: the change in which there is no change in the chemical composition and the properties of the substance. Physical change is that change in which there is no change in the structure and composition and properties of the substance. And we can reverse this change. It means physical change can be reversed. Suppose that if you have taken a iron rod and you bend it, आप एक आयरन की रॉड लेते हो, उसको आप टेढ़ा कर देते हो, मोड़ देते हो. एक आयरन रॉड लिया आपने, इसको आपने क्या किया, बेंड कर दिया. तो यू कैन मेक दिस अगेन स्ट्रेट रॉड, जिसको आप पुनः स्ट्रेट रॉड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये जो चेंज है ये रिवर्स हो गया. इट मींस इन दिस चेंज वी कैन ऑब्टेन द प्रीवियस सब्सटेंस. इस प्रकार के चेंज में हम पहले वाले सब्सटेंस को अगेन यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं. तो फिजिकल चेंज ये ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में, उसके कंपोजिशन में, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस or water is converted into vapor, so you can say there is only physical state is changed. Liquid is changed into solid or liquid is changed into vapor. तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड आइस इज सेम. The property of water and ice is same. यहाँ पे water और ice की property क्या है, same है. And the property of water and vapor is also same. यहाँ पे जो water की property है वही vapor की property है. Because they are made up of the molecules of water. It means there is a molecule that is made up of hydrogen and oxygen. So there is no change in the property, there is no change in the composition. So this change is a physical change. This change is a physical change, and you again convert ice into water. It means solid. When ice melts, it change into water. This is the process of melting.
The conversion of a solid into its liquid is known as melting. And that temperature, the temperature at which a solid substance changes into its liquid is known as melting point. Is known as melting point. And here the water is converted into vapor. The process in which a liquid substance changes into its vapor is known as evaporation or vaporization. When this process takes place at the temperature of its boiling point, then the process is known as vaporization. And when process of conversion of liquid into vapor takes place below the temperature of boiling point, then it is known as evaporation. तो ये जो प्रोसेस है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल चेंज है. तो हम आइस, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर को हम क्या कर सकते हैं? वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. By the process of condensation, you know, the conversion of a gaseous substance into its liquid is known as condensation. तो ये यहाँ पे ध्यान दो आप, फिजिकल चेंज क्या है? ये एक ऐसा चेंज है जिसमें हम सब्सटेंस के कलर को चेंज कर सकते हैं, सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बट देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. और ये जो चेंज होता है ये रिवर्सिबल है, यानी एक बार हो गया तो वापस हम प्रीवियस यानी पहले वाले सब्सटेंस को पुनः प्राप्त कर सकते हैं. तो केमिकल चेंज क्या है? व्हाट इज केमिकल चेंज? अब यहां पे आप देखो, अब ये आपने कहा कि जो फिजिकल चेंज है ये टेम्पोररी है. कैसा चेंज है? ये टेम्पोररी चेंज है. तो केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंट चेंज है. और यहाँ पे इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. ये इरिवर्सिबल है. केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन द प्रीवियस सब्सटेंस, यानी पहले वाले सब्सटेंस को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं. एक बार चेंज हो गया तो हो गया. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है. आपने एक बार लकड़ी को जला दिया तो वहां पे आपको ऐश मिला, राख मिला. अब उस राख से आप फिर से लकड़ी यानी वुड को प्राप्त नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? कुकिंग ऑफ फूड है, एक बार आपने भोजन को पका दिया तो फिर उससे रॉ मटेरियल्स आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. एक बार कोई रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फल एक बार पक गया तो उससे फिर आप उससे रॉ जो फ्रूट है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स है, प्लांट आपका एक बार ग्रो कर गया, छोटा प्लांट जो है वो बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो गया तो फिर से आप इसको छोटे प्लांट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो ग्रोथ आपका है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स में हो, प्लांट्स में हो, वो क्या है? वो केमिकल चेंज है, वो इरिवर्सिबल है, उसको आप वापस नहीं ला सकते. तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज is a permanent change. Chemical change is a irreversible change. The change in which the structure and properties of a substance is changed is called chemical change. यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे? आपका केमिकल चेंज कहेंगे. अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th के लिए कि भाई डिफरेंस क्या होता है. तो आपने कहा, आप लिखोगे पहला पॉइंट में, तो क्या लिखोगे भाई कि इन द फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. यहां लिखोगे कि प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, यानी इसमें प्रॉपर्टीज जो है उसके गुण जो है वो बदल जाते हैं. ये इसमें आप लिखोगे टेम्पोररी चेंज है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज.
इसमें आप लिखोगे केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। नेक्स्ट आप लिखोगे ये रिवर्सिबल चेंज होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल है और ये क्या है, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे आपने मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है कि नहीं, या आपका किसी चीज को आप फाड़ रहे हो, टीयरिंग ऑफ पेपर है कि नहीं, क्या पेपर को आपने फाड़ दिया, या बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड है कि नहीं। तो क्या बेंड करने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, रॉड जो है वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, नहीं है तो आयरन रॉड ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसको आप फिर से सीधा कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चेंज क्या हो गए, ये डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे है आपका इस सेशन में, दैट इज द एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर मींस शुद्ध होता है, सब्सटेंस मींस पदार्थ, यानी एलिमेंट्स क्या है, ये प्योर सब्सटेंस हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो मिक्सचर, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ अनदर सब्सटेंसेस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं वो एक ही जैसे हैं। पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की। और एटम का स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो अभी हमने बताया था कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर आप फर्दर आगे बढ़ोगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the properties of the elements are periodic function of their atomic numbers, यानी जो एटम्स हैं, ये एलिमेंट हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सब एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज डिपेंड ऑन द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स हैं। तो आप कह सकते हो कि एलिमेंट की डेफिनेशन हम तो या तो यहां से दे सकते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस which have the same number of every atom, the same number in every atom which consists the element। यानी एलिमेंट जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो ऐसे एटम से बने हैं जिनके न्यूक्लियस में सेम नंबर प्रोटॉन का होता है, ठीक है। या आप ऐसे सीधे कह सकते हो कि एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स, सेम एटम्स। तो जो एक ही यानी एक ही प्रकार के वन काइंड ऑफ एटम से बने हो तो उनको हम कहेंगे एलिमेंट। एंड यू नो दैट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं और इसमें से जो फर्स्ट 92 एलिमेंट्स हैं दे आर नेचुरल एलिमेंट्स, दे आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं। और इसके आगे जो है आपके 93 to 118 जो एटॉमिक नंबर जिनका है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी। इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, निर्मित किया गया है, इनको बनाया गया है एंड दे आर अनस्टेबल, ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, बिकॉज ये इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज वेरी हैवी न्यूक्लियस and it has the property of radioactivity because they emit
रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मींस अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, यानी जिनका भी हैवी न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से ये रेज निकलती हैं, और जब ये रेज निकलती हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे आपका यूरेनियम है, अगर यहां से 1 अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, निकलता है, तो ये यूरेनियम जो है वो चेंज होता है थोरियम में। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, इसलिए हमने कहा कि हैवी जो न्यूक्लियस वाले एटम हैं दे आर अनस्टेबल। तो हमें यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये प्योर सब्सटेंस हैं, और ये ऐसे एटम से बने होते हैं जिनके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, या ये सेम प्रकार के समान प्रकार के एटम से बने होते हैं। या इसको और एक हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which cannot be changed into another simpler substances, यानी ऐसे एलिमेंट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको और सिंपलर सब्सटेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को हम आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ही रहेगा, आयरन है तो आयरन ही रहेगा। अब आयरन को हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज कई डेफिनेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिमेंट्स की। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, and third is metalloids. तो first is metals, second is non-metals and third is metalloids. तो ये metals, non-metals और metalloids क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो metals क्या होते हैं, जैसे हम 118 एलिमेंट्स हैं और ये यहाँ पे रखे गए हैं सभी एलिमेंट्स, और आपसे कहा जाए कि भाई जाओ मेटल्स 5 मेटल्स लेके आओ, वहां रूम में जहां एलिमेंट्स रखे गए हैं तो वहां से 5 मेटल्स लाओ या 5 नॉन मेटल्स लाओ या जाके कुछ मेटलॉइड्स ले आओ, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, कैसे आप पहचान सकते हो, है कि नहीं? वहां जाने के बाद आप कैसे जानोगे कि भाई कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड्स है? तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसके ऑन द बेसिस ऑफ some properties we can identify the metals, non-metals and metalloids. So what are they? तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मेटल्स की, पहले हम लोग मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल्स आर those substances which are solid in nature. तो पहला क्या है भाई, ये सॉलिड होते। तो हम लोग जब जाएंगे इस रूम में तो हमें अगर मेटल्स लेना है तो पहले हम उन सब्सटेंस को देखेंगे जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। सेकंड, दे हैव अ गुड साइन, दे हैव लस्टर, यानी ये चमकदार होते हैं, चमकते रहते हैं उनमें, है कि नहीं? जैसे आपका गोल्ड आपने देखा, सिल्वर है, तो इस तरह से जो मेटल्स हैं, एल्युमिनियम है, आयरन है, तो इनमें क्या होता है, एक साइन होती है। क्या होती है? साइन होती है, जिसको लस्टर बोलते हैं, चमक बोलते हैं। तो उसके आधार पे हम लोग ये देखेंगे कि भाई किसमें साइन है, किसमें नहीं। तो पहले तो ये देखा कि कौन से सॉलिड है, फिर उसमें दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या ढूंढा, इसमें से चमकदार कौन है, कौन कौन से चमक रहे हैं, बढ़िया लाइट उसमें साइन है कि नहीं? तीसरा जो प्रॉपर्टीज होगा, दे आर मैलिएबल। तो मेन प्रॉपर्टीज हम यहां राइट कर रहे हैं, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है अनबीटन, दे कन्वर्ट इनटू थिन शीट। अगर उनके छोटे से टुकड़े को या पार्ट को अगर हम उसको हथौड़े से हिट करें, बार बार उसको पीटते रहें, तो वो पाउडर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, फैलेगा।
और फैल करके धीरे धीरे वो एकदम पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पीटने पर वो फैलेगा। तो उसका एक पार्ट लेकर के अगर उसको पीटते हैं तो फैल रहा है, वो पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो मेटल है कि नहीं। थर्ड है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल होते हैं, इट मीन्स वी कैन ड्रॉ वायर, उनको खींच करके हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो डक्टाइल होते हैं। फोर्थ अगर हम देखें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम कोई एक सर्किट ले लें जिसमें एक बल्ब हो, इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसका एक वायर से ऐड करें हम, है कि नहीं, और यहाँ पे बैटरी से ऐड कर दें प्लस माइनस इसके वायर को, और फिर अगर हम ये मेटल अगर है, इसका एक वायर यहाँ पे टच कराएं, इसका एक वायर यहाँ पे टच कराएं, अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वन एंड को एक वायर से दूसरे एंड को दूसरे वायर से टच करेंगे, बल्ब क्या होगा, ये ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस मेटल में वन एंड टू अनदर एंड में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर है। तो मेटल जो होंगे वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अगर ये वन एंड को अगर हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा एंड भी अपने आप क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हीट का भी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ, तो ये क्या है भाई, कंडक्टर है किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। अगर इनका हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, इनको गर्म करें, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, तो दे हैव हाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। यानी जो मेटल्स हैं ये बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये इवेपोरेट होते हैं, यानी वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और अगर हम केमिकली देखें तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस which loses or which lose, metals are those substances which lose electrons or which form cations in the chemical reaction। यानी मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में केटायन बनाते हैं, यानी आप कह सकते हो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे आपका ये सोडियम है, जब भी ये रिएक्शन करेगा, जैसे हमने कहा यानी ये है और ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं, तो ये जैसे ही सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो 2Na कह सकते हैं 2Na plus 2H2O 2NaOH plus H2। तो आप देखो यहाँ पे ये Na है, अभी ये जीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं है कि, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ NaOH में देखोगे ये हाइड्रोक्सिल आयन पर -1 होता है, इस हाइड्रोक्सिल आयन पर, तो Na पर क्या होगा, +1। तो +1 का मतलब क्या हुआ, इस पर 1 प्लस आ गया है, इसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप देखोगे स्ट्रक्चर में, आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। किसी भी एटम में ये दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। अगर 10 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है तो टोटल कितना हो गया, 0, है कि नहीं। आप देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज सेम है, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन अब 10 थे, अब कितने हो गए, 9। The remaining electrons are 9। अब ऐड करोगे दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 आएगा। क्या आएगा भाई, +1, है कि नहीं। तो इस पर +1 आ गया।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ये आपके मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये कैटायन फॉर्म करते हैं, धनायन बनाते हैं इन द केमिकल रिएक्शन। तो इनका ये मेन प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसमें से हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को यहां से ऑन द बेसिस ऑफ दीस प्रॉपर्टीज वी कैन डिस्टिंग्विश, इनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं, है कि नहीं। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, नहीं उठाओगे तो भारी लगेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, मेटल्स की। एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है कि नहीं, कॉपर है, जिंक है। तो ये सब क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स क्या हो गए, जो सेकेंड टाइप है। तो नॉन मेटल्स में आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ दीस प्रॉपर्टीज हम इसमें कैसे सेपरेट करेंगे। तो नॉन मेटल्स ये दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तीनों हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये नॉन मैलिएबल होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर, यानी अगर आप उनको हैमर यानी हथौड़े से पीटते हो तो तुरंत टूट जाएंगे, वो फैलेंगे नहीं, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, पीटने पर टूट जाते हैं। दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो बैड कंडक्टर हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट या हीट फ्लो नहीं कर सकते हैं। और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्या होता है भाई, लो होता है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि दे फॉर्म कैटायंस इन द केमिकल रिएक्शन, ये मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे फॉर्म एनायंस, they form anions in the chemical reaction because they receive the electrons in the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो आपका हो गया, अभी हमने कहा था यहाँ पे कि ये सोडियम है और ये सोडियम जो है ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। when sodium react with chlorine it forms sodium chloride, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे दोनों पर न्यूट्रल है, क्योंकि अभी तो ये एटम फॉर्म में है, एन एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ये इस पर +1 हो गया, इस पर -1 हो गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हो गया, मेटल। और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। क्या हो गया भाई, नॉन मेटल, ठीक है। तो जितने भी गैसेस हैं एलिमेंट्स में, जितनी भी गैसेस हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स। क्या है, नॉन मेटल्स है। इसके साथ साथ जैसे आपके कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। आप देखोगे जो ब्रोमीन है जो कि हाइड्रोजन फैमिली का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये सब जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है नॉन मेटल्स में जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओनली वन एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल एंड इट इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। मेटल्स में आप देखोगे तो मेटल्स में जो है आपका, अगर हम बात करें सीजियम की, गैलियम की, मरकरी की, तो ये सब क्या होते हैं, दे आर लिक्विड, दे आर इन लिक्विड फॉर्म। तो सीजियम जिसका Cs होता है, फ्रांसियम जिसका Fs होता है, आपका गैलियम जिसका Ga होता है और मरकरी जिसका Hg होता है। These are the four metals which are in liquid state। ये लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स हैं। और ये जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 4 + 1, टोटल कितने हो गए, 5। तो 118 जो एलिमेंट्स हैं इसमें से 5 एलिमेंट्स किस फॉर्म में हैं, लिक्विड। किसमें है, लिक्विड में। बाकी जो हैं वो या तो गैस हैं या सॉलिड हैं। तो मोस्ट ऑफ द, इसमें से 2/3 ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स।
तो मेटल्स तो होंगे तो किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड में होंगे। यानी ज्यादातर एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। 5 कितने हैं भाई? वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो रेस्ट है वो क्या है? गैसियस फॉर्म में है। तो ये नॉन मेटल्स हो गए। इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम इस नॉन मेटल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सम एलिमेंट्स ऐसे हैं व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी किसी परिस्थिति में वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे को हम कहते हैं क्या? मेटलॉइड्स। जैसे आपका बोरॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, तो ये सब क्या है? ये नॉन मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो इसके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेटल्स और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, या व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, डिफाइन मेटलॉइड्स विद एग्जांपल्स। तो इन सब में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।